শৰ্মাৰ মৰিগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহু উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলাৰ লগতে উদ্বোধন কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই। নমস্কাৰ, আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। প্ৰথমটো খবৰ, গুজৰাটত 12 ডিচেম্বৰত শপত গ্ৰহণ হ'ব, ভূপেন্দ্ৰ পেটেল পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। এতিয়া শেহতীয়া যিখিনি খবৰ আহিছে সেইমতে আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে গুজৰাটত যিহেতু 12 ডিচেম্বৰত শপত গ্ৰহণ হ'ব আৰু ভূপেন্দ্ৰ পেটেল পুনৰ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। সোমবাৰে শপত ল'ব ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে, উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত থাকিব অমিত শ্বাহ উপস্থিত থাকিব। আৰু এয়া হৈছে শেহতীয়া খবৰ। আৰু যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ যে আজি পুৱাৰ ভাগৰৰ পৰা গুজৰাটৰ যি কাউণ্টিঙৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈ গৈছোঁ, গতিকে যেনেধৰণে আশা কৰা হৈছিলে বা অমিত শ্বাহে যেনেধৰণে কৈছিল, ঘোষণা কৰিছিল নিউজ 18ৰ মজিয়াত, ঠিক তেনেধৰণে বিজয়ী হ'ল বিজেপি। গতিকে সেই অনুপাতে 12 ডিচেম্বৰত শপত গ্ৰহণৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পুনৰ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ভূপেন্দ্ৰ পেটেল। সোমবাৰে শপত ল'ব ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে আৰু সেই অনুষ্ঠানত অৰ্থাৎ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু লগত থাকিব অমিত শ্বাহ। ग्रोथ इंजन बना है। प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भाजपा सरकार ने सेवा और सुविधा नहीं दी हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन का परिणाम ही है कि गुजरात आज शासन और विकास के सभी मानकों पर देश में अग्रणी है। अब इस विकास यात्रा को और तेज गति देने हैं। इस संकल्प पत्र में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शेड्यूलेशन 100% लाभार्थी तक पहुंचने का जो विचार दिया है, उसे आने वाले दिनों में चरितार्थ करने का पूरा रोडमैप है। গুজৰাটত অভিলেখ সৃষ্টি কৰি ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে বিজেপিয়ে। সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক আসনত জয়ী হ'ল বিজেপি। জয়ৰ পিছতে দেশজুৰি বিজেপি শিবিৰত ব্যাপক আনন্দ উল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও অংশ ল'ব বিজয় উৎসৱত। আনহাতে গুজৰাটত 12 ডিচেম্বৰত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব, ভূপেন্দ্ৰ পেটেল পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। সোমবাৰে শপত ল'ব ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে, উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, অমিত শ্বাহ। আমি ইতিমধ্যে শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি কৈছোঁ, লগতে আমি এই কথাও জনাই গৈছোঁ যে ঘোষণা কৰা হৈছে যি ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত হ'ল বিজেপি, তাৰ পিছতে সংবাদ মেলা আয়োজন কৰা হৈছে, মিঠাই বিতৰণ কৰা হৈছে, মুখ মিঠা কৰি ইজনে সিজনক অভিনন্দন জনাইছে আৰু বিজেপি শিবিৰত এই উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুজৰাটক লৈ। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে এক অভিলেখ সংখ্যক যিহেতু এই বিজয় সাব্যস্ত হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 12 ডিচেম্বৰত তেওঁলোকে শপত ল'ব। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান হ'ব, য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপস্থিত থাকিব আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব। আমি এই মুহূৰ্তত সেই মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই গৈছোঁ। বিজয় উৎসৱ আৰু এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আৰু আমি এবাৰ আগবঢ়াম আমাৰ সংবাদদাতা ৰচনা উপাধ্যায়ৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी अमित ठाकर का परिवार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका परिवार है और जिस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी जश्न मना रही है और जो गुजरात की जनता है वो डबल इंजन की बात कर रही है। तो इस वक्त हम एक डबल इंजन यानी कि डबल डेकर बस के ऊपर खड़े हुए हैं और मैंने आपको बताया कि प्रत्याशी का परिवार हमारे साथ है, सपोर्टर्स हमारे साथ में, देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं कि इस डबल डेकर बस में किस तरीके का उत्साह आपको देखने के लिए मिल रहा है। अमित ठाकर जी की पत्नी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप लोगों को लग रहा था कि बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी? हाँ, पहले से पाटिल जी ने डिक्लेयर कर दिया था और वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट था, तो ये क्या फैक्टर काम कर गया जो
बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं वो बेहद पीछे पिछड़ती नजर आ रही हैं। मोदी जी से के इतने सालों के परिश्रम और उनके डेवलपमेंट के काम, अमित शाह की चाणक्य नीति, पाटिल जी की और सीएम साहब की लीडरशिप की वजह से हम ये अचीव कर पाए रहे। आप कह रहे हैं कि मोदी साहब की नीति, अमित शाह जी की चाणक्य नीति, भूपेंद्र भाई का काम, आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में अपना दिल्ली मॉडल लेकर आई और उनका कहना था कि दिल्ली मॉडल जो है वो गुजरात मॉडल पे कहीं ना कहीं हावी पड़ जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से shown that it is all fail, only the BJP Modi model is only successful। तो यहाँ पर आपकी फाइट किसके साथ थी? बीजेपी की, कांग्रेस के साथ? फाइट ही नहीं थी। वी वर लीडिंग बट वी पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स और हम लोगों के लिए बहुत काम करेंगे, हमारी पूरी ताकत लगा के काम करेंगे। बिल्कुल पूरी ताकत लगा के आप काम करेंगे। क्योंकि आप भी महिला हैं तो क्या ऐसी चीजें आपके पति आपसे जरूर डिस्कस करते होंगे? क्या वो सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की नई योजनाएं लाएंगे, नई एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या कुछ? योजना एक्चुअली मोदी जी और गवर्नमेंट लाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी योजना गुजरात गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दी है, उसको लोगों तक पहुंचाए और मैक्सिमम लेडीज उसका यूज करे, वो हम करेंगे। एक सवाल और है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार जो ब्लेम गेम करती रही, कई तरीके के आरोप भी लगे, तो उनके आरोपों को देखते हुए आप लोग क्या कहना चाहते? क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो ये सब ही करना था उनको, और कोई ऑप्शन नहीं था। उनका तो लगातार कहना था कि मोदी जी बार बार इसीलिए गुजरात आ रहे हैं क्योंकि जमीन जो है वो खिसकती नजर आ रही है। नहीं, रिजल्ट हैज प्रूवन दैट वी आर the only government which will, BJP is the only government here। तो आप ये डबल डेकर बस लेके रिसीव करने आए हैं? यस, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डेकर बस में हम विक्ट्री सर्कस निकालेंगे। तो विक्ट्री सर्कस निकलेगा और किस तरीके से सेलिब्रेशन रहने वाला, बस आखिरी सवाल है। हम जी और सब हमारे कार्यकर्ता लग गए हमारे साथ और डबल डेकर बस में हमारा विक्ट्री सर्कस निकलेगा। तो यहाँ पे अमित ठाकर का परिवार, आप देख सकते हैं कि खुशी का उत्साह का माहौल है यहाँ पर। किस तरीके से पूरी जो बस है वो सपोर्टर्स के साथ भरी हुई है और यहाँ का जो माहौल है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देखेंगे कि बस के अंदर से बाहर का जो माहौल है, जो खुशी का माहौल है, वो आप देख सकते हैं। फूल यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं और एक बहुत सारे फूलों की जो टोकरी है वो भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। पूरी बस को फूलों से सजाया गया है, सेलिब्रेशन की पूरी तैयारियां हैं और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें तो सपोर्टर्स के साथ जो सपोर्टर्स है उनसे ये पूरी जो सड़क है वो भरी नजर आ रही है। काउंटिंग सेंटर ये है और ये काउंटिंग सेंटर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुजरात के जो सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, उनके नतीजे भी यहीं से आने हैं और लगातार लोगों में उत्साह का माहौल देखने के लिए मिला। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और नारेबाजी की जा रही है। जिस तरीके से भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं और चूंकि अब जिस तरीके से जो बढ़त बनाई हुई है बीजेपी ने, जिस तरीके से नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यही लग रहा है जो बढ़त है उसको देखते हुए कि आने वाले समय में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती हुई यहां नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। खबर आरो আছে সময় বিরতি। স্টিল এনেকৈ পৰে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত। হিমাচলত চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কংগ্ৰেছৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ কংগ্ৰেছৰ চৰ্চা। প্ৰতিভা সিং হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী। কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে চূড়ান্ত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী। আৰু যিহেতু আমি কৈ গৈছো, এফালে গুজৰাটৰ যিখন ছবি আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, গুজৰাটত কোৱাই হৈছে যে তেওঁলোকে নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজে ব্ৰেক কৰিছে, নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজে ভংগ কৰিছে। ঠিক তেনেধৰণে হিমাচলত এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ কংগ্ৰেছৰ চৰ্চা চলিছে। प्रतिभा सिंह হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী।
আৰু ইতিমধ্যে আমি হিমাচলৰ কথা কৈ গৈছো যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে চূড়ান্ত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী আৰু যেহেতু কুচকাৱাজ এতিয়া চৰকাৰৰ বনোৱাৰ যেহেতু কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে চলিছে গতিকে CM পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছত চৰ্চা চলি আছে বিশেষকৈ হিমাচলত চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিলেই কংগ্ৰেছে আৰু সেই অনুপাতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আমি যদি ইফালে কংগ্ৰেছৰ কথা কওঁ কংগ্ৰেছে যেহেতু হিমাচল প্ৰদেশত বিজয় হ'ল বা জয়লাভ কৰিলে ঠিক তেনেধৰণে যদি এক প্ৰকাৰ কোৱা হয় যে এক প্ৰকাৰ বিজেপিক উফৰাই পেলোৱাৰ প্ৰসংগ আহে আৰু আনহাতে এক প্ৰকাৰে এতিয়া আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছত হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ এটা চিন্তা তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিছে গতিকে তেওঁলোকক ছত্তীশগড়লৈ পঠাই দিয়াৰ বা ছত্তীশগড়ত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰো এটা প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে কাৰণ তাত যিহেতু শাসকীয় বিজেপি বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে গতিকে বিজেপিক উফৰাই পেলাইছে কংগ্ৰেছে সেই অনুপাতে হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ এটা আশংকা কৰিছে হিমাচল কংগ্ৰেছে কিন্তু যিয়ে নহওক ৰাজনীতিত যিকোনো হ'ব পাৰে যিকোনো ঘটনাই ঘটিব পাৰে গতিকে এই দুটা দিনৰ ভিতৰত সেইখিনি কথাও স্পষ্ট হ'ব কিন্তু যিয়ে নহওক এই মুহূৰ্তত যিখিনি খবৰ আমি সেয়া কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰতিভা সিং হ'ব পাৰে আৰু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে চূড়ান্ত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী वो बाकी हैं लेकिन जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे जो साथी कैंडिडेट थे अब हम उनको धारासभ्य के रूप में प्रस्थापित वो हो चुके हैं। दिवेश भाई को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी उनकी बहुत ही अच्छी लीड से जो जीत हुई है। साथ ही साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, CR पाटिल जी हैं और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे वापस देखेंगे ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, CR पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं उन्होंने जिस हिसाब से मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर और पूरे एक महीने की जो लगन जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं हम सभी की जीत हुई है और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी थी, लेकिन वोटर्स ने आखिरकार क्या निर्णय लिया, क्या मुद्दे के ऊपर बीजेपी को चुना? देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मोदी का चेहरा भी पूरे डेफिनेटली यस बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है वो CM से लेके PM तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर बीजेपी जा रही है, पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में। क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म हो गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है। ये जीत धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है। ये जीत राज्य के मृदु मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की है। ये जीत राज्य के आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब की है। इस जीत के बाद निश्चित रूप से आने वाले 20 सालों का जो गुजरात तय होने वाला है उस पर काम किया जाएगा। और एक बार फिर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। 50,000 का अंतर है, मुकाबला कहाँ की बात है। 50,000 का विरमगाम की जनता ने ये जीत सिर्फ हार्दिक को नहीं दी, ये जीत विकास को दी है कि आने वाले दिनों में विरमगांव, मांडल, देत्रो जो नलकांठा का जो इलाका है उसका विकास हो, वहां पर अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे सिंचाई के पानी की तैयारी गांव के किसानों तक पहुंचे, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, आर्मी के ट्रेनिंग के लिए अच्छे ग्राउंड्स बने। ये हमारी प्राथमिकता मेरी असेंबली के लिए। और निश्चित रूप से जब 5 साल के बाद आप मेरी असेंबली में कवर करने के लिए आएंगे तो बहुत बेहतर काम आपको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मैंने पहले भी कहा था जब आप मेरे पास आए थे, तो ये जीत सलामती और सुरक्षा की है। ये जीत विकास के मॉडल की है, वो विकास मॉडल जो गुजरात की जनता चाहती है कि मेरा गुजरात आज हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है, यही गुजरात आने वाले दिनों में विश्व में पहले नंबर पे पहुंचेगा। इसी कारण एक बार फिर गुजरात की जनता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10 सालों का गुजरात कैसा होना चाहिए उस पर काम करे। खबर अब्याहत राखिम, समय पुनर बिरति। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পৰে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ।